बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है रिया सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नू किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने का काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ा करके ये 3,200 रुपए मासिक किया है, 3,200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। See, first of all, let's look at the impact. So prices have started increasing of all raw materials, because mostly raw material, let's say in the medical device industry, I can talk more about that. The raw material cost is increasing because all the plastic material which is made from petroleum products, so that is increasing by around 15-20%. We've always seen prices increasing. There's a disruption in supply chain because a lot of petroleum products also come from outside of India, especially from Middle East. So that is also getting disrupted. Then also, we have contracts which you have to execute, and these are fixed time contracts. And if you are not able to supply in time, most of these contract products are shipped by air freight. Even the air freight is not working. So I think also what we have heard recently, all the logistic costs are also increasing, the supply chain costs. So eventually the products will get expensive. A lot of Indian companies will have to bear the brunt of the increased raw material pricing, also of the supply chain costs. So these are double whammy which is going to impact the industry. And today it's only 1 or 2 countries which are getting impacted. The whole of Middle East is getting impacted. So, and Middle East is a very major market for Indian products, whether it's pharma products or medical device products. So that is going to be greatly impacted in the long run. So India is also going to lose valuable foreign currency, which we are getting by exporting our products to those markets. So what do you think at this particular situation, what initiatives should be taken? See, India is the closest country, a major geography which is closest to this war, I would say. And I think India can also take advantage of the situation. We can have government to government understanding where, Indian medical products, Indian pharmaceutical products can be shipped out under special corridor to these countries, because we are the closest and our products can reach the fastest to these countries. And I think that is what the government should take as an initiative. Secondly, MEA also provides a lot of aids to these countries, and a lot of it is aid where we are supplying foreign owned equipments or foreign made equipments. So a lot of Indian companies are making such equipments now. We have now a lot of manufacturing which is happening in India, also pharmaceutical products. So MEA should only procure locally made products which are meeting those specifications and supply to government, where there's a government to government understanding. Another area we can focus on is that how we can, ensure that India's supply chain is not disrupted. So can we have understanding that India's crude import, which is very much Middle East dependent, we can have a special pricing for crude oil so that our input costs don't increase. Because today everything is globally linked. But today you can make a special contract, because if India is willing to help on the other side, where we can supply our pharmaceutical products at the same price,
at older prices without enhancing the cost, then can we get our inputs also at the same price? So can there be a barter trade basically? सर अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अभी तक सिर्फ 3 देशों की बात हो रही थी, लेकिन लगातार जो है और भी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व होती जा रही है, जिसकी हम बात करते हैं वेस्ट एशिया। सर क्या सिचुएशन है ऐसे में? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो उससे बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, इम्पैक्ट तो काफी बड़ा है क्योंकि डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा हुआ है आज इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आज सारा जो कार्गो मूवमेंट था सारा की सारा रुक गया है। जो सी से मूवमेंट थी, जो एयर फ्रेट मूवमेंट्स थी, वो सारी की सारी रुक गई हैं। और उस वजह से अगर प्रोडक्ट्स टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किए हुए हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई हो जाएंगे, उन पर हमें पेनल्टीज भरनी पड़ेंगी। और ऐसा हमें लग रहा है कि थोड़ा ये वॉर लंबा चल सकता है, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है, जो हमने कमेंट्री सुनी है अभी तक, जो अमेरिका से भी सुनने में आ रहा है, इजराइल, वो लंबा वॉर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत ही सिचुएशन, बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। और आई थिंक जो आज डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल आने में भी दिक्कत आ रही है, प्रोडक्ट जाने में भी दिक्कत आ रही है, और हमारी एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ेंगी। एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ती जाएगी। तो जरूर इससे पूरी इंडस्ट्री में नुकसान होने वाला है। और इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी डिप्लीट होगा, क्योंकि हमें तेल महंगे रेट में खरीदना पड़ेगा, हमारे को प्रेशर आएगा, जो एक्सपोर्ट कम होगा हमारा मिडिल ईस्ट पे, जो बहुत बड़ी नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल्स या मेडिकल प्रोडक्ट्स बल्कि आज काफी सारे प्रोडक्ट्स हम मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीजें रुक जाएंगी क्योंकि शिप्स आज पैसेज ही नहीं हो रहा वहां पे। तो इससे हमारी करेंसी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सर क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? आई थिंक इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करनी चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो सबसे नजदीक है आज इनका, जो ये वॉर हो रहा है, सबसे नजदीक इकोनॉमी, हम जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो हम सबसे नजदीक हैं इस वॉर के, और हमारे बहुत लोग भी हैं वहां पे। आज हमारे करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं आज उस एरिया के अंदर। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक बात होनी चाहिए जहाँ की मेडिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, हमें एक कॉरिडोर बनाना चाहिए जहाँ की ये प्रोडक्ट्स फ्रीली ट्रांजैक्ट हो सके बिना किसी रोकथाम के। और यही बात हमें अमेरिका, इजराइल से भी होनी चाहिए कि इन प्रोडक्ट्स पे कोई रोक नहीं लगे आने जाने में, ताकि लोगों को टाइमली एड मिलती रहे। क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट्स नहीं गए और वहां लोग अगर हाथाहाथ हो रहे हैं वहां पे और इतनी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, तो वहां पे भी हमारी जो खुद की पॉपुलेशन है, जो 1 करोड़ हिंदुस्तानी है, वो भी इम्पैक्ट होंगे। तो वो हमें जरूर एक करना चाहिए। और साथ में अगर हमें, जैसे आज कई बार रशिया से हमें डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल मिल जाता है, तो क्या ऐसा कुछ हमारा वेस्ट एशिया की कंट्रीज से भी अरेंजमेंट हो सके कि हमें डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल मिल जाए, ताकि इंडिया की जो सप्लाई चेन है, कॉस्ट है, और जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो नहीं बढ़े और हम सेम रेट्स पे वही प्रोडक्ट्स उनको सप्लाई कर सकें।